Step number 6 is subscribe to Book Buddy. 7th is an addition for today that you need to subscribe to Intelligentsia. So how did you develop the habit of reading or ye rujhan in the first place? So if I recall, it is actually attributed to one of my English teachers. His name was Sir Tariq. So he made us fall in love with books, especially starting with Roald Dahl, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Theodore Taylor. I still remember that the key एक book है Theodore Taylor की, which talks about discrimination and racial prejudice. That really caught my attention. और जिस तरीके से वो पढ़ाते थे, it is absolutely, I still remember it very vividly कि उन्होंने किस तरीके से, the way he used to teach, ऐसा लगता था कि we are very close to that, what exactly is happening. So I thought कि यार this is fascinating, this world of books. And then I slowly and gradually I start. अच्छा बीच में ये नहीं कि मैं मतलब if I remember 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास से, ये 5वीं 6वीं की बात है. This is around 6th or 7th grade. Very early. Yeah, absolutely. मैंने तो यूनिवर्सिटी में आके बुक्स पढ़ना शुरू किए. तो मैं I studied in Head College, तो वहाँ पे तो full thought control होता है. हम 5 बहन भाई हैं. We have 5 siblings and all of us were educated in the city school. City school का एक hallmark था उस जमाने में. I don't know, it doesn't exist anymore. That they laid a huge stress on literature, English literature. इसमें आप शेक्सपियर भी पढ़े हैं, like I said, चार्ल्स डिकन्स भी पढ़े हैं, यूल्स वर्न भी पढ़े हैं. So that was the time I really got into it. And then when I did my matriculation, उस ज़माने में थोड़ी सी habit थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी. But then my father and mother kept on pressing us कि यार keep on reading. And slowly and gradually this actually became a part of my life. It became a part of who I am. And now I'm at a stage in my life, Talha, जहाँ पे it, like the way we eat, drink, एक inseparable part बन गया. it's an integral part of my personality. I cannot spend a day without reading. जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हम लोग इसके बगैर नहीं जिंदा रह सकते. इसी तरह I cannot think of my life without reading a book. And that too a physical book. Yeah. Kindle वगैरह का. So Kindle, I am old fashioned in that regard. नहीं, मैंने recently buy किया था Kindle और around I've been using it for 5-6 months. लेकिन मैंने इसलिए परचेज़ किया था कि उसके ऊपर वो बुक्स अवेलेबल होती हैं जो कि बहुत क्लासिक्स हैं, जो कि आपको यहाँ पे नॉर्मली बुक स्टोर्स के ऊपर नहीं मिलेंगी. लाइक वॉल्टेयर्स फिलोसॉफिकल डिक्शनरी मुझे चाहिए थी, बेकन के एसेज चाहिए थे, मिल ही नहीं रहे थे. तो उसका एक ये फ़ायदा. लेकिन फिज़िकल बुक्स का कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है. I have nothing against digital books, e-books का ज़माना है, so I have nothing against them. However, मेरी एक preference है, personal preference, that I like raw paper. I like the smell of that raw paper. And the entire experience of shopping for books. मेरा महीने में एक दिन होता है जहाँ पे मैं 2 से 3 घंटे जाता हूँ बुक स्टोर में. I skim through the books, I pick up the best books, then I sit down, then I go through each, and so I select around 20 books and I shorten it down to eventually 4-5 किताबें जो मैं महीने के अंदर. और वो जो कहा जाता है कि judging a book by its cover, तो वो तो नहीं होता. Yeah, it's not there anymore because I give a good thought, because now it's part of my audience is associated with it. So each and every book that I choose, I think it not only from my perspective, मैं लोगों को भी देखता हूँ कि how will people and my audience will react to it. So it's very, very important I select the right book. कि वो कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे. And how will it add to the overall intellectual stimulation of my country? ये भी तो देखना है ना. I'm making content for Pakistan audience. India से मेरा 20% traffic है. But my main audience is from Pakistan. So I cannot select the books which my local audience is not able to infer. वो समझ नहीं पाए या उनसे related नहीं है. Because जो मेरा book buddy का eventually जो mission है, that's not only book reading. Book is a means to an end. It's not an end in itself. ये बहुत important point है लोगों के समझने के लिए कि किताबें क्यों पढ़नी है. आपने knowledge हासिल करना है, wisdom हासिल करना है, cognitive development करनी है, अपने आप को बेहतर करना है, personality groom करनी है, अपने आप को intellectually sound करना है. Right? That's the reason why you read.
एंड इवेंचुअली माई गोल इज कि इस किताब बीनी के जरिए, बुक रीडिंग के जरिए, instilling this habit into the youth of Pakistan, into the people of Pakistan, I am able to help nurture and grow the people of our country. So how has this venture, Book Buddy, assisted you in your personal and professional life? Huge. It has Talha, it has transformed my life. मतलब ये आपने start कब किया? This is back in 2018. 5-6 साल पहले. Almost 5 years. और उससे पहले I suppose आपकी pace स्टार्ट करने से पहले इससे कंपेयर किया जाए तो यकीनन कम होगी ना. उसके बाद ये कि कंपल्शन आ गई. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो यू नो व्हेन आई रिकॉल 2017 और 18, एरिस्टोटल का एक कोट है कि इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज इनजस्टिस, एवरीवन विल गो इनटू पॉलिटिक्स एक्सेप्ट फॉर 2 groups of people. One are the timid and the other are the selfish. बुज़दिल और खुद गर्ज लोग. उसके अलावा हर बंदा सियासत में जाएगा जिस मुआशरे में इनजस्टिस होगा, नाइंसाफ़ी होगी. तो इसको मैंने एक अपना वर्जन दिया. इट्स द शाहरुख बुक बडी वर्जन ऑफ दिस. सो आई से इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन, वेयर देयर इज पीपल आर ड्रिवन बाय डॉगमास, देयर इज डॉगमेटिज्म इन द सोसाइटी, there is lack of rationality. People are irrational. In that society, any educated person who doesn't share his wisdom, intellect, knowledge with the people, I think he's not doing justice to his presence in the country. So ये सोच थी इसके बाद, इसको बुक बडी को लेके. And it has turned my life upside down in every which way. कि इसने मेरी जिंदगी को एक डायरेक्शन दे दी है. इसने मेरी ज़िंदगी को एक मकसद दे दिया है, एक ज़िंदगी को ऑब्जेक्टिव दे दिया है. एंड मतलब इफ आई सी माई एंटायर लाइफ, इट्स एन एक्सट्रैक्शन ऑफ माई एंटायर लाइफ. मेरा जो नॉलेज, जो भी विजडम, वट एवर लिटिल नॉलेज और विजडम दैट आई हैव एक्वायर्ड इन माई लाइफ, आई एम एबल टू शेयर इट विद माई ऑडियंस. दिस इज सच अ ब्लिसफुल फीलिंग. It's such a great feeling to have. और I think अच्छे खासे लोग होंगे जिनको आपने बुक रीडिंग पे लगाया होगा. Yeah, absolutely. मैं जब शुरू कर रहा था, लोगों ने कहा यार शाहरुख, कहाँ ये किताब, कौन पढ़ता है यार, क्या है, why do you, let's vlog something, do कोई vlogging करो, कोई meaningless किस्म की कोई डांस वांस करो. But that's not who I am. So I had to bring up something जो मैं खुद, that's a part of myself. And in the past 5 years, I can safely say that if not millions, I think thousands of people have changed the way they think courtesy my videos. I'm not saying this with self-centered pompousness, but I really mean it, because I get a lot of DMs, I get a lot of emails and messages the way someone cracked an interview by watching one of my videos. Someone was able to mend their ways with their spouse by watching one of my videos. Someone was able to groom their personality by watching one of my videos. So it's such a fulfilling experience. मुझे आपकी एक वीडियो याद है जो मैंने फेसबुक पे देखी थी. आई थिंक इट वाज 2019 or something, regarding civic ethics. Oh yes, yeah. क्या थी वो? Top 10 etiquettes. वो बहुत कमाल थी. I loved shooting that video. Though it was so stimulating, और उसमें इतने lessons थे सीखने के लिए, और वो मैंने शेयर भी की अपने प्रोफाइल पे. सो आई थिंक वो पहला इंटरेक्शन था मेरा आपके साथ. आई केम टू नो यू. इट वाज अ फैंटास्टिक वीडियो. मेरा उसका आई वांटेड टू शूट पार्ट 2 and 3. अच्छा. बट आई एम सो प्रेस फॉर टाइम तला, मेरे लिए 24 घंटे कम पड़ जाते हैं जिंदगी में. सो दिस इज नॉट द ओनली, दिस इज जस्ट आई गिव मे बी, रीडिंग को तो मैं टाइम देता हूँ रोजाना 1 घंटा, बट दिस इज आई गिव मे बी 2 hours a week to book buddy. I run companies, I teach at business schools. Nice. And I read as well. I have a channel. This is a full-fledged, this is a startup you can consider, book buddy. So I'm into so many things. मेरे लिए 24 घंटे कम पड़ जाते हैं. I request God कि मुझे 25 या 26 घंटे दे दो, कुछ करें, do something. I learned one thing from my, इसी बेस से मुझे एक बात याद आ गई कि my first job was with the Koreans, South Koreans के साथ. I was the protocol officer at Consulate General of Republic of Korea. तो वो कहते शाहरुख,
The world has 24 hours. We have 25 hours. Sometimes we have 26 hours. I was fascinated. What nonsense is he talking about? Then he told me, we know the art of creating time. हमें टाइम को क्रिएट करने का आर्ट आता है. So I used to wonder how. 12 से 1 हमारा लंच ब्रेक होता था. उस लंच ब्रेक में तला they used to eat lunch, they used to play table tennis, and they used to sleep. 3 activities in an hour. And that's how you create time for yourself. हमारे यहाँ unfortunately तला, I don't want to sound very pessimistic, but you know, one of the biggest reasons why we are in this turmoil is कि we do not value time. हमारे मुल्क में वक्त की कदर नहीं है. मैं बोला अपना जिया मोहिद्दीन साहब को अपनी बुक देने गया रीलिस्तान. His secretary told me कि Shahrukh, you have to be on time, right? I'm 99.9% I'm on time with whatever commitments I have. तो मैंने कहा सर एक चीज मुझे जो आपकी बहुत अच्छी लगी कि you have military precision when it comes to time. कहते शाहरुख, पाकिस्तान में क्या होता है, लोग कहते हैं बस 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूं. वो कहते हैं ये तो 25 मिनट हो गए ना. So how can you miss 25 minutes of your commitment? और ये हर जगह है, मतलब मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया इस चीज को. Absolutely. बहुत कम लोग होते हैं जो पंक्चुअलिटी. I went to Azerbaijan last September and our tour guide, वो हम बस में थे, हम बस से डिसएम्बार्क होने लगे तला. It was so embarrassing what she said. She said, since you are from Pakistan, all of you are from Pakistan, I know you will be late in the morning. And if you're late, our entire program for the day will be ruined. This is the image that we have portrayed in the world. Deplorable. Absolutely. So that's what motivates me to read. That's what motivates me to share my wisdom, whatever experience or whatever the reading I have done with the people, with a proper background, deliberate attempt कि लोगों को सिखाना है. असल में मेरी जो फाइंडिंग है ना 5 साल की तला, वो ये है कि people are not aware. You have studied Plato's allegory of the cave. हाँ, ये इसका पोस्टर भी हमने लगाया हुआ है. जी. What a fascinating story this is. It's a tailor fit for Pakistan and we as a nation. So we are actually suffering from Plato's allegory of the cave, where we actually don't know what's the truth. So if I know the truth, I need to disseminate it. Yeah, it's a responsibility. It is a responsibility, and it's a responsibility of a lifetime. बिल्कुल है. Yes. ये एक और है मेडिटेशंस, ये भी पैक पे लगी हुई है बाय मार्कस ऑरेलियस. पहले बात कर रहे थे. तो इसमें इन्होंने एक पॉइंट बताया है कि जो गलती कर रहा है इंसान, उसकी असल में उसकी गलती नहीं है, उसके नॉलेज की गलती है. सो द रियल कल्प्रिट इज द नॉलेज मीन्स के उसके आइडियाज, उसके बिलीव्स. Absolutely. People are actually the victims of that knowledge. तो जो लेसन है वो ये है कि इस नॉलेज को काउंटर किया जाए किसी तरीके से, और नया प्रोडक्टिव पॉजिटिव नॉलेज इंस्टिल किया जाए लोगों में. Absolutely. बर्ट्रैंड रसल की हम लोग बात कर रहे थे ना, बर्ट्रैंड रसल ने कमाल की बात कही. It's such a beautiful. Every line of it is beautiful. Every line of Bertrand Russell is beautiful. और बड़ी सिंपल से अल्फाज में बहुत बड़ी बात कन्वे करता है. He said, the most beautiful thing in this world is intelligence. कमाल बात है यार. बहुत सिंपल बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बर्ट्रैंड रसल को भी, एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, and even if people have, they belittle, degrade, demean him. यार ये तो एथिस्ट है. भाई एथिस्ट है तो हम एथिज्म के ऊपर तो उसके बात भी नहीं कर रहे. हम तो उसके इंटेलेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम तो उसके आर्टिकुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम तो उसकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थॉट प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं. राइट. सो एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स दैट वी एज अ नेशन नीड टू लर्न इज व्हाटएवर द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनीवन आर, उनको साइड पे रख के लेट्स टॉक ऑन लॉजिक, लेट्स टॉक ऑन अगेन रैशनैलिटी ऑफ थॉट, एंड लेट्स टॉक ऑन मेरिट. फॉर इंस्टेंस, वो आपसे अगर ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है, वो आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है कि व्हेन विल पीपल बी एबल टू फ्लाई इन द स्काई, तो देन जज देम बेस्ड ऑन व्हाटएवर द लॉजिक दे आर गिविंग फॉर देयर आर्गुमेंट rather than what their religious beliefs are. That's what I believe.
तो ये बिल्कुल है, सोसाइटी में ये बड़ा इशू है कि पीपल आर द विक्टिम्स ऑफ फॉल्स या हार्मफुल नॉलेज। तो अगर आपने सेपियंस पढ़ी हो तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है मीमिज्म का ना। Yeah. There are certain ideas which have captured people's minds. तो उन ideas को counter करने की ज़रूरत है। You see, there's a book, Thank You for Being Late. अच्छा। Thomas Friedman की, I guess. Yeah. In it, he shows a graph, the speed of growth and innovation vis-a-vis human adaptation. So the innovation is absolutely exponential growth है उसका, बिल्कुल बहुत steep graph है, और human adaptation बहुत पीछे है. So technology is actually growing exponentially. All of us know that. मैं ये कहता हूं कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसी हिसाब से, उसी स्पीड से, if not more, we need to challenge our existing belief system. And with challenge I mean, आप उसको ये नहीं करें कि आप उस सबको रिडिक्यूल करना शुरू कर दें. Question करें। Please question it. Doubt is the first step towards wisdom. So start doubting things. It's part of our religious understanding as well. Your religion says, reflect on things, understand the universe. So it's important that we do that. बिल्कुल। और ये जो पिक्चर्स लगी हुई हैं हमने यहाँ पे लगाई हैं, इनकी मतलब दे आर पर्सनालिटीज़, और भी बहुत सी हमने बहुत सी मिस भी कर दी हैं, लेकिन दे आर पर्सनालिटीज़ जिन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए ना चैलेंज किया कुछ ना कुछ। फॉर इंस्टेंस देयर इज़ मैडम क्यूरी, आई वाज रीडिंग मैडम मारी क्यूरी, इनका शी डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी एंड आई वाज लिसनिंग टू हर बायोग्राफी. आई हैवंट रेड इट, आई विल रीड इट, लेकिन मैंने कोई एक दिन पहले ही पढ़ी है, और फिर आई डिसाइडेड कि आई हैव टू हैव अ पिक्चर ऑफ हर इन द बैकग्राउंड. सो इनका ये था कि शी स्ट्राइव्ड थ्रू डिफ़िकल्ट कंडीशंस, और देन शी वाज एबल टू मेक अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू नोबेल प्राइजेस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड Yes. और जब I was very happy to see pictures हैं, और लगाया हुआ है, बिल्कुल, और रसल लगा हुआ है, तो इसकी थॉट ये Schopenhauer लगा हुआ है, वो तो कंपल्सरी है. You need to add a few pictures over here. हाँ, For example, कुछ modern writers की, बिल्कुल, हाँ, एक तला लगानी है, is just a recommendation. Yeah, sure. Adam Grant, okay, ठीक है, is one of the most brilliant scholars of the modern era. उसकी बुक है Think Again, originals भी है उसकी बुक. Think Again is one hell of a book. एक और पिक्चर लगानी है स्टीवन पिंकर की, an absolute outright genius. स्टीवन पिंकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, प्रोफेसर. सही है. And एक, it's a controversial figure, but Dr. Jordan Peterson. Jordan Peterson. He's the mega star. He's the Tom Cruise and Shahrukh Khan of the world of literature. और No one like him in the modern world, at least of what I know. He makes a lot of sense, and he's very, the way he articulates his point, it's as if your mind is speaking. Whatever you have in your mind, your expressions are coming to life. It's beautiful. तो 12 rules for life, तो it was transformative. उसका पहला रूल, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, उसके ऊपर आप पूरी किताब, पूरा फलसफा लिख सकते हैं. इन द वे ही गिव्स द एग्जांपल्स ऑफ लॉबस्टर्स इन दैट, कितनी मतलब कमाल. आई हैव नेवर हर्ड अ लॉबस्टर कि लॉबस्टर्स के अंदर हायरार्कीज होती है. सो स्टिमुलेटिंग. उसका एक और बड़ा जबरदस्त रूल है कि कीप वन रूम इन योर हाउस एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल. वो उसमें आता है, बियॉन्ड ऑर्डर में आता है. हाँ, बियॉन्ड ऑर्डर में वो कहते हैं कि अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा ब्यूटी बना के रखो. Everyone cannot afford to build a beautiful house, but if you can't, then at least one room in your house should be really beautiful. और उसमें in my opinion ब्यूटी से ज़्यादा एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने का मैसेज दिया गया, in my opinion, जैसे मैंने उसको इंटरप्रेट किया. Yes. Well, you have to keep your one foot in order and the other beyond order. What a beautiful thought. कि आपने लाइन पकड़ी हुई है जहां पे you are living your life in order, but there is one side of you where you're actually exploring. You're giving your mind, taking your mind for a ride. You're giving your mind the necessary revolutions to keep yourself relevant in the modern game. बिल्कुल. So it's beautiful.
So I love Dr. Jordan Peterson as well. Sure. I can give you a lot of other names as well, but वो दीवार भर जाएगी पूरी. हाँ नहीं, maybe if we expand it in future, so we can add more pictures. हम इसमें छोटी pictures भी add कर सकते हैं. So एक आपने बल्कि दो लोगों एक top notch बंदा. You know him, Hasib knows him, everyone knows him, but we don't know the depth of the person. And he's Dr. Allama Iqbal. बिल्कुल. We have limited Iqbal Sahab to लप्पे आती है दुआ और but the sort of depth that genius had, it's if any one individual his thought can change the entire course of our nation, it's Dr. Allama Iqbal. बिल्कुल है. Course of a nation or course of a person as well. Course of he has actually transformed my. I am a living manifestation of Dr. Allama Iqbal in terms of Through how which he has, a text, poetry, कोई शायरी से या शायरी उसके अलावा शायरी और उनकी किताब एक तो है उनकी द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम. सही है. राइट. एक उनके बेटे ने उनके ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी है जिंदा रूद के नाम से. एंड मैं बल्कि बताता हूँ तला, मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी डॉक्टर जावेद इकबाल से मिलने की, उनके जो फर्जंद थे. आई लव्ड हिम. मैंने उनकी बहुत वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, बट ही ऑफ कोर्स आई थिंक ही पास्ड अवे इन 2014 और 2017. जी. तो मैंने जब अपनी किताब पब्लिश की रीडिस्तान, तो मैंने उनकी जो वाइफ हैं डॉक्टर जस्टिस नासरा इकबाल, मैंने उनको कॉल की. मैंने कहा आई वांट टू प्रेजेंट माय बुक. कहती श्योर व्हाई नॉट. तो शी कॉल्ड मी टू हर होम और उन्होंने मुझे स्टडी रूम में बिठाया. स्टडी रूम में मैं जहाँ भी जाता हूँ आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग कौन क्या किताब है, कितनी पुरानी है, क्या पढ़ रहा है. वहाँ पे इकबाल साहब की किताबें पढ़ी हुई थी लॉ की, और देवर बुक्स वर मे बी 100 years, more than 100. Owned by Allama Iqbal. Owned by Iqbal. उन्होंने सरदार अब्दुल रब निश्तर से उन्होंने बताया कि वो किताबें उन्होंने ली थी, बोरो की थी. वो पुरानी बॉम्बे और इंडिया के ज़माने की लॉ की किताबें पढ़ी हुई. इट वाज फिल्ड टू द ब्रिम विद बुक्स. ठीक है. सो ये वो लोग हैं, ये इंटेलेक्चुअल थॉट लीडर्स हैं, ये दे शुड बी द सुपरस्टार्स ऑफ आवर कंट्री. इकबाल जैसे लोग हैं, अशफाक साहब जैसे लोग हैं. अनफॉर्चुनेटली है नहीं. वी गिव सच अ टिल्ट टू देयर लाइफ कि या तो उनको एक कूजे में बंद कर देंगे, उनको एक जगह जाके कि यार इससे ज़्यादा नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन जो बुक है वो बैंड है सऊदी अरब में. उन्होंने कहा ये कुफराना कलाम है. हालांकि मैंने भी रिसेंटली मैनुअल कांट को रिव्यू किया है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन. मैंने भी नीचा को रिव्यू किया, बियॉन्ड गुड एंड इविल, नीचा की लाइफ के बारे में बात की. आई हैव रेड वेस्टर्न फिलॉसफी, आई हैव रेड बर्ट्रैंड रसल. बट द रिकंस्ट्रक्शन वो किताब है तला, मैंने 2000-2500 किताबें पढ़ी हैं अपनी जिंदगी में. आई हैव रेड इट ऑल. मतलब मुझे नहीं, आई डोंट नो कि दुनिया का कौन सा स्टॉलवर्ड होगा जिसको मैंने नहीं पढ़ा होगा, या हिस्ट्री में कौन सा स्टॉलवर्ड होगा जिसको नहीं पढ़ा होगा. लेकिन मुझे जिस किताब ने सबसे ज्यादा परेशान किया अपनी लाइफ में, दैट्स रिकंस्ट्रक्शन. इतनी डेप्थ है उसके अंदर. इट्स अ ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंड हाउ मॉडर्न एजुकेशन and how you can reconstruct the theme of Islam according to modern times. So religious philosophy, Western philosophy, modern world, modern knowledge, modern experience, blend of intuition and sense perception. What is ego? How will life after death be? एक तो है ना आपने बिल्कुल ही सुपरफिशियल सा आपने आर्गुमेंट दे दी, लेकिन इकबाल साहब को when you will read the book, you must buy that book and read that book. नहीं, फर्स्ट समझ नहीं आएगी पहले. नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी. I spent 4 years with that book. 4 years. And finally I was able to grasp the message that it had. पहले मैं इसको पढ़ूंगा, then I'll try to discuss it as well. बिल्कुल. You do one thing. You see my lectures first. मैंने उसके 4 lectures cover कर लिए. Buy the book. Read. Go through my lecture on YouTube, lecture number 1. सही है. When you will watch that lecture, उसके बाद when you will read, तो it will start making a bit of sense. आसान हो जाएगा. थोड़ी सी आसान हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी शायद ना समझ आए. You need to spend a lot of time with that book.
That book has the power to change the course of our nation and individual. I am, like I said, it has transformed me as an individual. लोग इकबाल साहब के जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि उनकी शायरी में कुछ और बात है और प्रोज में कुछ और बात है और पोइट्री में कुछ और बात है, क्योंकि इन डेप्थ पढ़ा नहीं होता उन्होंने. हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब शायरी की जाती है ना, शायरी इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. यू कैन नॉट फाइंड द ट्रूथ इन इमेजिनेशन, यू फाइंड ब्यूटी इन इमेजिनेशन. तो उनका जो प्रोज है, का जो नसर का काम है, वो बहुत हाई क्लास है. And that is found in this Reconstruction. Reconstruction के अंदर है, उनकी अपना क्या नाम है, जावेद नामा के अंदर है. अच्छा. These are wonderful, fantastic books. These are path-breaking books. Any Western philosophy book, bring it on. Bring it on. And I can very safely say that the sort of content that this book has, it is absolutely outrageous, absolutely outrageous. I'll try के इस point के पे we can add a card or something, लेकिन card ना हुआ तो we can add it in description. The good thing is you're willing to learn. Yeah. And you have taken that decision कि you're willing to first unlearn. एक तो learning है ना, पहले unlearning भी तो करनी है कि जो कुछ सीखा हुआ है जरूरी तो नहीं है कि ना वही सच है. मेरी अच्छी खासी अनलर्निंग हुई जब मैं यूनिवर्सिटी गया. You would have realized कि 90% of what we have been told is a lie. Lie. And it's a blatant, vicious lie. It's a crime against our thought. It's a crime against our thought. अच्छा, अब a very brief comment on the benefits of reading books. See, एक तो ये है कि reading सबसे पहले तो it gives you the ability to think critically. Critical thinking आपके जहन के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर पैदा करती है. You're able to question, you're able to doubt, you're able to have various perspective about a single thing. For example, आप कहते हो वक्त क्या है? What is time? Time and space क्या है? ज़मान और मकान का क्या कॉन्सेप्ट है? जब ना आपने रीडिंग ही नहीं की, आपने इस सोशल मीडिया के ज़माने में अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग पे चल रहे हो और आपने ज़िंदगी के ये जो बड़े बड़े सवाल हैं, फ्री विल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, टाइम एंड स्पेस क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट विल बी द लाइफ आफ्टर वंस वी पेरिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड. रीडिंग आपको ये करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप फ़लसफ़ा पढ़ोगे तो आपके अंदर ये तजस्सुस पैदा होगा. यू विल बी क्यूरियस टू नो कि यार व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं इसकी रियलिटी क्या है. तो सबसे पहले तो रीडिंग आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करती है. ठीक है. उसके बाद रीडिंग आपके जहन के अंदर नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करती है. I'll give you an example. I brush my teeth with my right hand. कभी कभार मैं अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करता हूँ जानबूझ के. Do it. You try this experiment. सही है. होता ये है कि your body realizes कि this is something new. क्योंकि मैं तो रोजाना सीधे हाथ से कर रहा हूँ. वो ऑटोमेटिक पे लगा हुआ है. ऑटोमेटिक पे लगा हुआ है. So you surprise your body, you surprise your mind, and it creates a new neural. एक जहन के अंदर एक नई रोड बन गई. अब उस रोड पे आप ट्रैवल कर सकते हैं. रीडिंग ये करती है आपके साथ. आप बर्ट्रैंड रसल को पढ़ रहे हैं, आप इकबाल को पढ़ रहे हैं, आप थॉमस फ्रीडमैन को पढ़ रहे हैं, आप डेनियल डेफो को पढ़ रहे हैं, आप चार्ल्स डिकिंस को पढ़ रहे हैं, आप रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन को पढ़ रहे हैं, आप जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ रहे हैं, आप सिमोन डे बुवार को पढ़ रहे हैं, आप शोफनार को पढ़ रहे हैं, आप नीचा को पढ़ रहे हैं. You see what a beautiful bouquet of writers and authors we have. The way the universe is expanding, I think the mind expands in the same manner. Yeah, absolutely. It actually makes your thinking limitless. Limitless, क्योंकि लिमिट है ही नहीं. लिमिट है ही नहीं. ये तो ब्यूटी है ब्रेन की. ने कह दिया ना कि यूनिवर्स इज infinite. बिल्कुल. So our brain has actually limitless potential. बिल्कुल है. Number 2. Number 3, Talha, in your mind, in my mind, in Hasib's mind, to all the people who are listening to us right now, हमारे अंदर एक hidden genetic code है, एक hidden genetic potential है. और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस कायनात में मेरे लिए पर्सनली सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? We are born and we die, we perish without absolutely realizing कि what that hidden genetic potential is. ये सबसे पेनफुल बात है. क्यों हम एक डेवलपिंग मुल्क में पैदा हुए हैं, गरीब मुल्क में, जहाँ पे रोटी पानी के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजर जाती है.
सो रीडिंग क्या करती है, आपका जो वो हिडन जेनेटिक पोटेंशियल है उसको अनलीश करती है कि आप किस लिए इस दुनिया में आए हो. इज देयर अ पर्पस अटैच्ड टू योर बीइंग? ऑफ कोर्स इट इज. सो रीडिंग हेल्प्स यू आइडेंटिफाई, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर यू टू फाइंड दैट पर्पस ऑफ योर लाइफ. अगर मैं किताबें ना पढ़ता तो आज शायद बुक बडी ना होता. अगर मैं किताबें ना पढ़ता तो मैं अपनी कंपनी नहीं चला पाता, मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ना होती. हाँ, अगर मैं किताबें ना पढ़ता तो मुझे शायद ट्रैवलिंग का शौक ना होता. अगर मैं किताबें ना पढ़ता तो मेरी थिंकिंग का जो पैटर्न है वो शायद बहुत ही लिमिटेड होता, टनल विजन होता मेरा. सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इट अनलीशेस, इट हेल्प्स यू अनलीश योर हिडन जेनेटिक पोटेंशियल, रियलाइज योर जेनेटिक पोटेंशियल. वो कहते हैं ना कि एक बुक रीडर लिव्स 1,000 लाइव्स. एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू. ऐसे अब इसी का एक चौथा बेनिफिट ये है, इफ आई से यू कि प्लाटो की रिपब्लिक है, मैं कहता हूँ तला के कैन यू गो एंड मीट प्लाटो? कैन आई गो एंड मीट प्लाटो? आई कांट. कैन आई गो एंड मीट इकबाल साहब? आई कांट. कैन आई मीट बर्ट्रैंड रसल? When I read The Conquest of Happiness, I feel like meeting Bertrand Russell. बिल्कुल. Can I do that? I can actually. You How? can, yeah. I can just open his book and I start speaking to him. And the book is the best version of that person. अब इसमें एक बहुत क्रिटिकल बात मैं करने वाला हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आजकल की डिजिटल ऑडियंस के लिए कि why a book? Why not a podcast or a video? In no way belittling, demeaning, berating, degrading the institute of podcast or videos. किताब है क्या चीज? What is a book? Book is a consolidation of an individual and author's thought process. वो एक मोमेंटम है उसकी सोच का. उस पर बड़ी मेहनत हुई हुई होती है. वो बड़ी कोहेरेंट है, वो बड़ी कंसाइज है, वो बड़ी कंसोलिडेटेड है, उसके ऊपर एफर्ट लगी हुई है, years and months. तो वो जब आप एक कंपाइल करके किताब बनती है तो इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट होता है कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिखरी हुई नहीं होती, वो बड़ी कोहेरेंट होती है, बड़ी कंसाइज होती है. vis-a-vis any of the perhaps a YouTube video, I'm not like I said in no way berating the entire institution, but किताब का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. बिल्कुल नहीं है. कोई ऑल्टरनेट नहीं है. ये रिप्लेस नहीं हो सकता है मीडियम. ये रिप्लेस नहीं हो सकता. फिर रीडिंग का एक और बेनिफिट ये है कि आजकल पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ issues, people are having disorder, someone is having manic episode, someone is going through bipolar disorder. Reading helps you take a pause in life and it's fun, it helps you relax, it helps you create an entirely new world for you. एक मैं बिजार बात करने वाला हूँ. Sure, I like bizarre thoughts. ऑडियंस जो है ना, आपने घबराना नहीं है. ठीक है. I do not usually talk about this thing, लेकिन एक बिजार थॉट आई एकदम से मेरे. जरूर. एक एवरेज ह्यूमन कितनी जिंदगी है उसकी आजकल? 60-70. पाकिस्तान में आई थिंक मेल्स की जो एवरेज एज है दैट्स अराउंड मे बी 66-68. बिल्कुल ऐसा. जापान में इट हैज क्रॉस्ड 80, इन सम प्लेसेस इट्स 88. बाय द वे, डू यू नो तलहा कि 100 years back human average age was 38. बिल्कुल. Today it has more than doubled. In the coming years you'll find a lot of centenarians ऐसे सड़क पे चलते हुए जा रहे होंगे खेलते. So we are life span is increasing. बहुत बड़ा है. So average फिर भी अगर हम ले 70 साल तक अगर हम जिंदा रहे तो our life is 70 years. But the bizarre thought is we can actually live a life of 150 years or 200 years in these 70 years. How? ये इसको ऑडियंस ने गलत नहीं लेना, ठीक है ना. ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बात है, इसको कंफ्यूज नहीं करना कि मैं स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ या लोग कहें देखो शाहरुख क्या बातें कर रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया की बातें कर रहा है और ऑल ऑफ दैट. मैं आपको बताऊं, मैं 5 से 6 जिंदगियां जीता हूँ. आई लिव ऑन डेली बेसिस, आई लिव 5 to 6 लाइफ. ओके. एक है मेरी लाइफ मेरी ऑडियंस के लिए जो मुझे बुक बडी के नाम से जानते हैं. एक शख्स है, वो अपने रूम में बैठ के पीछे किताबें और वो किताबों के ऊपर बात करता है एंड पीपल लव दैट. एक मेरी एंटरप्रेन्योरियल लाइफ है. एक मेरी लाइफ मेरी फैमिली के साथ है which might be absolutely different to what life I have on camera. हाँ. फिर एक मेरी लाइफ है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जीता हूँ.
हाँ, फिर एक लाइफ है जो परहैप्स मैं वर्कआउट के दौरान जीता हूँ, फिर एक मेरी लाइफ है जो मैं अपनी किताबों के साथ जीता हूँ. और इसका एक एक्सट्रीम वर्जन बताऊं, परहैप्स इन अनदर लाइफ, अनदर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, माई नेम इज नॉट शाहरुख, परहैप्स आई एम एन अल्लाह in that world. Perhaps I'm a John or a Bob in that world. सही है. हाँ? समझ गया मैं. हाँ. इसको उस क्रेजी थॉट से कंफ्यूज नहीं करना ऑडियंस प्लीज. वो जो थॉट है ना स्प्लिट पर्सनालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम टेलिंग यू द पावर, द पोटेंसी ऑफ रीडिंग, व्हाट इट डज टू यू. समझ गया मैं. यू लिव डिफरेंट लाइफ. यू आर कन्वर्सिंग विद बर्ट्रैंड रसल. आप रसल बन जाते हैं कुछ टाइम बाद. यू कन्वर्सिंग विद ऑरवेल. आप नीचा को पढ़ते हैं. मैं नीचा को पढ़ रहा था, पूरी जिंदगी बीमार रहा वो. इवेंचुअली यू नो द सैड थिंग इज दो लोग, एक विंसेंट वैन गोग, जिसको पाकिस्तान में वैन गोग कहते हैं, एक्चुअली इट्स विंसेंट वान गॉग. विंसेंट साहब became insane and he shot himself. Right? अपनी जिंदगी में उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिली. बहुत से लोगों को नहीं मिली. लेकिन आज उसकी एक पेंटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है. नीचा को ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी में कोई रिकग्निशन नहीं मिली. उसकी सारी किताबें, कितनी दर्जनों किताबें लिखी उसने, 100 कॉपीज भी नहीं बेच पाया नीचा. अगेन ऑडियंस के लिए, a few people say Friedrich Nietzsche, a few people say Nietzsche. It's Nietzsche. It's actually Friedrich Nietzsche. German में. पूरी जिंदगी उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिली. Eventually he went insane. पागल हो गया. At the end of his life, in the last 2-3 years of life, he turned insane. But करनी देखो, जैसे जैसे उसकी इंसैनिटी बढ़ रही थी, वो पागलपन की तरफ जा रहा था, उसी तरह उसकी रिकग्निशन भी बढ़ रही थी. So what I'm saying कि पागलपन ना करें, but I'm just telling you, your audience is smart. I know what I'm trying to say. They will understand what I'm trying to say. They will. So you can actually live a lot of life, a lot of different life while being a reader. And then of course it's fun as well. एक और फायदा, like I said, I can go on and on. एक और बहुत ही बड़ा, सबसे शायद बड़ा फायदा रीडिंग का है, it helps you focus. आजकल का सबसे बड़ा मसला ये है attention span. In a matter of minute, you check your laptop, you see what's going on with your WhatsApp, you see what's going on with your Facebook and all. इस वक्त जंग जो है ना, सबसे बड़ी जंग है आपके फोकस की. 30 years back आपके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का चैलेंज था. आज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का चैलेंज नहीं है, फोकस का है. आज फिल्टर टू दैट इंफॉर्मेशन का चैलेंज है. Because you are bombarded with stimuli left, right and center entire day. How do you control your focus? And then there is disinformation. जो पता ही नहीं है लोगों को, पता ही नहीं है. तो रीडिंग आपको क्या करती है, आपका फोकस बढ़ाती है. An average individual sees his or her mobile phone 250 times a day. 250 दफा, if not more. We are spending 5 to 6 hours every day on our mobile devices. Such a waste of life. बिल्कुल. इसके लिए मेरी एक थ्योरी है, मेरी नहीं, मैं उसको अपना लिया है. एक्चुअली जेफ बेजोस ने उसको प्रोपेगेट किया था. इट्स नोन एज रिग्रेट मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल फॉर द ऑडियंस एज वेल. इट विल हेल्प यू फोकस इन लाइफ. सो तला अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जिंदगी का लाइफ स्पैन कितना है. हाँ, सो फॉर इंस्टेंस मेरी जिंदगी होती है 70 years या 80 years. मेरा पर्सनल गोल है कि एटलीस्ट 80 years तो होनी चाहिए. सो for instance, let's do a thought experiment. I'm 80 years old. I'm on my deathbed, about to pass away. And I take my mind for a ride. And I recall what I've done in my 80 years of life. हाँ, ये बड़ा What would I like to recall? हाँ? कि मैंने Game of Thrones की बजा दी. मैंने House of Cards 15,000 दफा देख लिया. हैं? मैंने वो सूट्स देख लिया. मैंने दुनिया, कबीर सिंह की मैंने 1500 दफा देख, मैं खुद कबीर सिंह बन गया देख के. या वी मैंने इतनी किताबें पढ़ी. उन किताबों से मुझे इतना विजडम मिला. लोगों को एजुकेट किया. से लोगों को मैंने एजुकेट किया. उस एजुकेशन की वजह से कहीं किसी की नौकरी लग गई, कहीं किसी की पर्सनैलिटी बन गई, कहीं किसी ने अच्छा कमाना शुरू कर दिया, कहीं किसी को इंक्रीमेंट मिल गया. The choice is yours and I don't push. मेरी पर्सनैलिटी में एक बड़ा फ्लॉ था. पहले मैं समझता था तला कि मैं जो काम मैं कर सकता हूँ ना, सब कर सकते हैं.
ये मेरी लीडरशिप का भी फ्लॉ था. If I can give good presentations, I can speak in front of the camera, I can be vocal, I can be articulate, I can be eloquent. मुझे भी ये लगता है वैसे. मुझे भी. आपने ईमेल वाली बात नहीं की थी. मैंने कहा ये तो कॉमन सी बात है. So I realized that it's not the case. हर बंदे की अपनी preferences. Someone might say कि यार मुझे Netflix ही देखना, I don't care. मैं डेथ बेड पे भी कहूँगा यार मैंने सीरीज पे सीरीज देखी. कोई मसला नहीं है. It's your choice. But for me and for this nation, the choice has to be learning and lifelong learning. That's the DNA that I'm carrying with myself. And that's the solution to many That issues. is the ultimate solution. मैं कहता हूँ खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, whoever it be, कुछ नहीं होने वाला. nothing will work. Absolutely nothing. ये जो हीरो वर्शिप पे हम लोग लगे हुए हैं ना, nothing will work except if we don't start our own journey of lifelong learning. हम लोग सारी उम्र इस quagmire, इस दलदल में फंसे रहेंगे. I was discussing this with Dr. अंजुम अल्ताफ. उन्होंने बताया कि एक बुक है जापान में पब्लिश हुई है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है, और वीक के अंदर अंदर उसने मिलियन कॉपीज़ सेल की. और ये भी था कि उसको ख़रीदने के लिए लाइन लगी हुई थी, जैसे आईफोन के लिए लाइंस लगी होती हैं. और एक और चीज़ उन्होंने ये बताई कि लोग जो है वो उन्होंने परचेज़ की और कैफ़े में चले गए और वो फिर उसको ख़त्म करके उठे. तो मेरा ये ओपिनियन है कि कोई भी किसी भी जगह पे अगर हिस्ट्री में सोशल चेंज आया है तो वो इसी वजह से आया कि कोई बुक किसी ने लिख दी और वो स्प्रेड हो गई और वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दी, और फिर वो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में पॉलिटिशियंस के दरमियान, मोनार्क्स के दरमियान डिस्कस होना शुरू हो गई और लोगों के दरमियान, और फिर उसकी वजह से एक असर आना शुरू हो गया. पावर कॉरिडोर्स में पावर को चैलेंज करना शुरू कर दिया गया. सोशल चेंज विल नॉट बी पॉसिबल ही क्योंकि आप किताब के जरिए एक फलसफा प्रोपेगेट करते हो ना, उस वो मीमिज्म आ गया फिर. मीमिज्म एब्सोल्युटली. आप फलसफा प्रोपेगेट करते हो, आप अपनी सोच को प्रोपेगेट करते हो, वो फैलती है, वो लोगों के जहनों का हिस्सा बन जाती है. अब कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स ने लिखा ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाली किताब है वो. ऐसे ही है ना. और मार्क्स के फ्यूनरल पे आई थिंक कोई 20 से 25 लोग थे. हाँ, एंड सी. और उसके बाद रेवोल्यूशन. बाय द वे आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, सो पीपल डोंट. हाँ, नहीं, मैंने भी अभी ठीक से पढ़ा नहीं है. एक और चीज आपकी ऑडियंस के लिए कि अगर मेरा किसी चीज पे बिलीफ नहीं है ना तो वो मेरा दुश्मन नहीं हो जाता. ऐसे ही है. आई ऑलवेज से कि इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड, intelligent mind. I think Aristotle said this. It is the mark of an intelligent, educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. अगर मैं कार्ल मार्क्स की तारीफ कर रहा हूं तो आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट और अ सोशलिस्ट और अ मार्क्सिस्ट, लेकिन शायद मैं उसकी किसी सोच से अलाइंड हूं. वो 3 Idiots में कहता है ना कि ज्ञान बट रहा था, पकड़ लो जहां से पकड़ना है. सो मेरी तो ये थ्योरी है कि यार जो अच्छी बात करता है ना, विदाउट हेट्रेड, विदाउट प्रेजुडिस, without any sort of discrimination, you pick up the best and leave the worst. इतनी चीज़ें सीखने को. Sometimes I feel तला कि यार मैं अब enough हो गया, ये काम धंधा सब कुछ हो गया. I just want to read. And I just want to share this information. And that is what I'll do. I'll do this. It's inevitable. Because ये मेरी ज़िंदगी का inertia है. ये मुझे या तो मैं जिंदा रहूंगा तो मैं ये करूंगा, वरना I won't be able to. That's how passionate I am about this thing. I think Lily Tomlin का एक quote है ना कि I always thought why doesn't somebody do something about it? But then I realized that I was that somebody. हम लोग कहते रहते हैं यार कोई तो कुछ करे. तो वो जो you asked me the question right at the start कि आपने ये कैसे शुरू किया बुक बड़ी, this thought actually triggered the thought in me कि यार till how long will we sit in our drawing rooms and blame the people कि यार someone should do something. इसमें एक और एंगल भी है, ये ऑडियंस के लिए बड़ी सीख है इसके अंदर. हमारा जो मुल्क है ना वो क्राइसिस के अंदर है, पेरिनियल क्राइसिस के अंदर, ये परपेचुअल क्राइसिस चल रहा है हमारे मुल्क में सिंस पास्ट 75. एंड नजर नहीं आ रहा है एंड नहीं फिलहाल. अब मेरे लिए एक बहुत बड़ी, आप सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. क्यों? क्योंकि क्राइसिस के अंदर लोग लीडर्स को ढूंढते हैं, और अगर आपने थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया ना तो यू हैव द कैपेसिटी टू लीड द पीपल.
इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, Sure. सड़क के अंदर शायद इस्लामाबाद में तो ट्रैफिक जैम होता ही नहीं है, बहुत कम है। एक्सप्रेस वे पे शायद होता हो, कभी बहुत ट्रैफिक जैम हो, एक बंदा निकलता है बिल्कुल, और ट्रैफिक को कंट्रोल, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है एंड पीपल अलाइन विद हिम, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है। अगर आपने लीडर बनना है ना, तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, क्राइसिस के अंदर उठ जाए, अपने अंदर करेज पैदा कर ले, ऑटोमेटिकली यू विल फील पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। ये एक हैक है, लीडरशिप हैक है, बिल्कुल है। So in a country which is reeling with crisis, a perpetual crisis since 75 years, I'd say to my students, someone wants to go to Europe, someone wants to go Canada, someone wants to go Germany. मेरी एक स्लाइड है मैं जो पढ़ाता हूँ कि पाकिस्तान is a gold mine of opportunity. Why? It's reeling with crisis. There are innumerable problems. और problems के अंदर क्या है? You have to, someone needs to stand up. And जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उस मुल्क में उतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अभी तक वी हैव बीन डिस्कसिंग के बुक रीडिंग के फ़ायदे क्या हैं ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूं और इफ़ आई आस्क यू कि आपने बहुत सारे जॉनर्स पढ़े होंगे, तो स्टार्टिंग विद फिक्शन एंड देन नॉन फिक्शन एंड फिलोसफी एंड हिस्ट्री एंड एक्सेट्रा, स्पेसिफाई करके 1, 2, 3 बेनिफिट्स ऑफ ईच जॉनर, स्टार्टिंग विद फिक्शन। अच्छा, इसके ऊपर एक मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता हूँ, अक्सर लोग इससे एग्री नहीं करते, बट मेरे उसका एक रैशनल है व्हेन आई से दैट। मैंने बहुत फिक्शन पढ़ा है ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड, प्री टीन्स, मैंने बहुत फिक्शन पढ़ा है। फिक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है, इट गिव्स टेक्स योर माइंड लाइक आई सेड फॉर अराउंड द वर्ल्ड। जैसे एलिस इन वंडरलैंड है, आपने 20,000 लीग्स अंडर द सी पढ़ी, आपने क्या वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज पढ़ी, तो आपका क्रिएटिविटी को बूस्ट में। आपने रोल्ड डाल पढ़ा, आपने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री पढ़ी है, उसमें अजीब व गरीब के उम्पा लुम्पास की वो बातें कर रहा है और फैक्ट्री और ये और वो है। सो व्हाट फिक्शन डज इज कि इट नर्चर्स योर माइंड टू थिंक क्रिएटिवली। ये फिक्शन का सबसे बड़ा गेम है। एंड देन इट आइडेंटिफाइज विद द कैरेक्टर, कैसे बनाने हैं, सोच क्या है, बिजार थिंकिंग क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है, विदाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस थिंकिंग क्या है, ये फिक्शन आपको सिखाता है। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल बात है या कंफ्यूजिंग बात है वो ये है, मैं ये कहता हूँ कि इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, आफ्टर यू क्रॉस योर टीन्स, आई डू नॉट रिकमेंड रीडिंग फिक्शन आफ्टर टीन्स 18 ईयर्स के बाद। सही है। उसकी रीजन ये है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आई एम फोर्सिंग माई ओपिनियन ऑन एनीवन, राय होती है मैं उसकी रीजन ये है कि अभी हमने बात की ना मुल्क की सिचुएशन की, थोड़ा सा हार्डकोर व्यू है, थोड़ा सा रूथलेस व्यू, बट सो बी इट। हाँ, इट्स एन एक ओपिनियन। मुल्क जहां पे पर कैपिटा इनकम $1,400 है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द रीजन। बिल्कुल है। एक मुल्क जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 143वां नंबर है पाकिस्तान का, ये ऊपर नीचे होता रहता है। एक मुल्क जहां पे नेक्रोफीलिया है, कब्र से निकाल के पीपल हैव सेक्स विद द कॉप्स। सही है। एक मुल्क हमारा जहां पे 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। हाँ, एक मुल्क हमारा जहां पे सिंस पास्ट 75 years डेमोक्रेसी, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, देयर इज शैम डेमोक्रेसी। हाँ, एक मुल्क जहां पे देयर इज सो मच पॉवर्टी कि एक जगह उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, और दूसरी जगह रोजाना 4 से 5 लोग मरते हैं आटे की लाइन में। ऐसे मुल्क में जब आप एक टीनेज को क्रॉस कर लें, आप वो किताबें पढ़ें जो आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट कर सके pragmatically. It can be philosophy, it can be religious philosophy, it can be self-help books, it can be business management, it can be about startups, it can be about what the future says, like Harari लिखता है, Homo Deus उसने लिखी है, में भी उसने जिक्र किया है, एडम ग्रांट जैसी किताबें लिखते हैं, जॉर्डन पीटरसन या पीटर थील। सो मेरा ये कि 18 साल की उम्र के बाद इंसान का जहन काफ़ी पुख्ता हो जाता है, उसके बाद वो किताबें पढ़ें जो आपकी पर्सनालिटी को बेहतर कर सके। एंड इन टर्न, सिंस यू विल बी सेल्फिश अबाउट यू ग्रूमिंग योर पर्सनालिटी, यू विल एक्चुअली बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। सही है। नेशन बिल्डिंग में भी तो काम कर रहे होंगे ना। वो कहते हैं ना, एडम स्मिथ कहता है कि इट इज नॉट फ्रॉम द बेनेवलेंस ऑफ द बुचर दैट यू गेट योर मीट, बट ही इज परस्यूइंग हिज ओन सेल्फिश मीन्स। सो अगर मैं तला, आप कहते हो यार मैं सेल्फिशली अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपने आप को बेनिफिट पहुंचाना चाहता हूँ, एक्चुअली
This selfishness, it's a bizarre concept. This selfishness is leading to nation building. It's trickling down and it's contributing towards our country being uplifted. क्या बिल्कुल कमाल का कॉन्सेप्ट है यार. बिल्कुल. सो ये तो है फिक्शन के हवाले से मेरा. लेकिन कुछ बुक्स हैं जैसे फिक्शन में ही, जैसे एनिमल फार्म एंड 1984 एट्सेट्रा, कुछ बहुत ही इंटेलेक्चुअली लिबरेटिंग बुक्स. तो आई थिंक देयर आर एक्सेप्शंस. हाँ, एक्सेप्शंस हैं बिल्कुल. एनिमल फार्म इज वन ऑफ इट्स काइंड. 1984 इज वन ऑफ इट्स काइंड. बिल्कुल. ऑरवेल तो यार मतलब एनिमल फार्म is such a tailor fit for Pakistani politics. बिल्कुल. It's a fantastic ये book for मैंने every तभी Pakistan- लगाई सामने. मेरा तो आई दिल थॉट करता है, नजर आ रही मैं अक्सर अपने ऑडियंस को गिव अवेज करता हूँ, उसमें मैं एनिमल फार्म भिजवाता हूँ. मेरा दिल करता है मैं इसको सब्सिडाइज करके पाकिस्तान के हर घर में भिजवा दूँ. फ्री भिजवा दें. फ्री भिजवा दें. It's a brilliant book. So there are exceptions. Like I said, 19 Dan Brown की मैंने पढ़ी थी Da Vinci Code. So it's a brilliant वो भी इसी work of fiction. अच्छा. So ये तो है फिक्शन की बात. फिलॉसफी का मैं आपको बता चुका हूँ. फलसफा पढ़े बगैर आप इंसान ही नहीं बन सकते. आपका इनकम्प्लीट शख्स हो अगर आप फलसफा नहीं पढ़ते. एम्प्टी हो मेरे. हाँ, you're empty. बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी हो. आपको आपकी शख्सियत के अंदर डेप्थ ही नहीं आएगी जब तक आप फलसफा नहीं पढ़ोगे. फिर आता है, फिर कौन सा है? हिस्ट्री. आई वांट टू से टू थिंग्स व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री. एक कहते हैं कि people who do not learn from the mistake of history are forced to repeat them. बाउंड टू रिपीट. Bound to repeat them. फिर एक और लोग कहते हैं कि the only thing we learn from history is that we do not learn from history. So history के बगैर तो दो सब्जेक्ट्स लोगों का भरपूर इंटरेस्ट होना चाहिए. अपने बच्चों को भी प्लीज, everyone who's listening, you must pursue, in fact push your children कि आप उनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाएं. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. ओह यस. हिस्ट्री जब तक आपको अपने मुल्क की, अपने दुनिया की ज्योग्राफी नहीं पता, आपको उसकी तारीख नहीं पता, इंसानियत की history. इंसानियत कहाँ से शुरू हुई, व्हील कब इन्वेंट हुआ, फार्मिंग कैसे इन्वेंट हुई, मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे बदले, सोशलिज्म थॉट प्रोसेस क्या था, ब्राज़ील कहाँ पे है. लोग मास्टर्स पीएचडी कर जाते हैं, लोगों को ये नहीं पता होता यार अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट के अंदर है. पीपल डू नॉट इवन नो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव. हम लोग बचपन में गेम खेला करते थे. आई स्टिल रिमेंबर, मेरा भाई 7 years old, एट द एज ऑफ 7 उसको पूरी दुनिया के सारे मुल्कों के कैपिटल्स याद थे. हम लोग ये गेम खेला करते थे. 2 गेम्स खेलते थे. एक तो कैपिटल, फिर हम लोग ना एटलस खोल के उसमें एक सिटी पिक कर लेते थे. हमारे गेम्स थे कि जापान फॉर एग्जांपल टोक्यो पिक कर लिया, हेल्दी गेम्स, हेलसिंकी पिक कर लिया. हम फिर 1 मिनट है, बताओ हेलसिंकी कहाँ पर है, ढूंढो. such beautiful memories I have. तो हिस्ट्री के बगैर तो there is absolutely, and I want to give साथ मैं रिकमेंडेशन भी देता जाता हूँ. पाकिस्तान हिस्ट्री में लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. सो पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से एक बुक है चौधरी मोहम्मद अली की, द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान. फैंटास्टिक बुक टू रीड हिस्ट्री, अंडरस्टैंड व्हाट द पार्टीशन वाज ऑल अबाउट. फिर एक बुक है, इट्स अ वेरी अनबायस्ड बुक, फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपेयर एंड लैरी कॉलिंस की. मस्ट रीड बुक. सही है. फिर एक बुक है एतजाज हसन की, बैरिस्टर एतजाज हसन की, इंडस सागा. मस्ट रीड बुक फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. हिस्ट्री के बाद सेल्फ हेल्प का ही ऑन रहा है. ऑटोबायोग्राफीज. ऑटोबायोग्राफीज जो है, सवाने उमरी जो है किसी भी शख्स की, उससे जितनी लर्निंग होती है, क्योंकि एक तो ये कि वो खुद लिख रहा होता है, वो आपको अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स बताता है, अपनी ज़िंदगी की रियलिटी बताता है, आप उससे इंस्पिरेशन लेते हैं. लोग माइन कैंप है, हिटलर की जो बुक है माई स्ट्रगल, उसकी ऑटोबायोग्राफी है. यू रीड दैट एंड यू विल फील कि यार हिटलर का जो पोर्ट्रेयल है मैस मीडिया के अंदर, पॉपुलर मीडिया के अंदर, ये तो बिल्कुल ही उलट है. अपनी माँ की जहाँ पे वो दफन है, उस कब्रिस्तान की दीवार पे बैठ के वो रोता है. अच्छा. किसी ने ये सुना, कभी किसी ने बताया आपको हिटलर के बारे में? ये ना. Did someone tell you that he was an expert artist, especially buildings की जो डिटेल्स थी उसके एक्सपर्ट था वो उसके. अब ये उसकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा how he motivated Germans. अब ये उसकी ऑटोबायोग्राफी से पता लग सकता है, पॉपुलर मीडिया से पता नहीं लग सकता.
सही है, एफर्ट करना इसीलिए पड़ेगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। इसी तरह इवन आपको जो लोग पसंद नहीं भी हैं, आप उनकी भी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, आप ओबामा को पढ़ें, ओबामा की जो ऑटोबायोग्राफी है उससे सीखें, और जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनके ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, उससे बहुत हेल्प मिलती है। एंड देन देयर इज पोएट्री एंड प्लेज हाँ, एटसेट्रा। पोइट्री अगेन विलियम शेक्सपियर वगैरह, ये जॉन कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ एंड ऑल, इनको पढ़ें। लोग अच्छा, पोइट्री में ये खूबसूरती है कि आप किस तरीके से एक इतने बड़े कॉन्सेप्ट को 2 लाइनों के अंदर समेट देते हैं। कितने सच अ फैसिनेटिंग थिंग, कि कितनी बड़ी बात है। और 2 बड़ी सिंपल सी लाइंस में। 2 बड़ी सिंपल सी नाम है। इकबाल साहब का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खबर नहीं क्या है नाम इसका, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। पूरा सोसाइटल एनालिसिस कर पूरा रहे हैं। सोसाइटी। एक और शेर इकबाल साहब का, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबहगाही में इसे, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबहगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, because I spoke about Iqbal, so I want to actually motivate you to read Iqbal. So when I'll tell you the context, you'll be interested. ये एक नज़म है इकबाल साहब की, इबलीस की मजलिस शुरा। ठीक है, Iblis बिल्कुल है इबलीस। जी। So Iblis is sitting with his parliament and cabinet and पूछ रहा है, रिपोर्टर ला रहा है, हाँ भाई दुनिया को वरगला रहे हो, बेहतरीन, सबको बर्बाद कर रहे हो, लोगों को झूठ और मक्कारी और डिसऑनेस्टी पे लगा रहे हो। So शैतान इज टेकिंग द रिपोर्ट। हाँ, तो वो उसको रिपोर्टें दे रहे हैं उसके मिनिस्टर्स। एक जो है ना उसका एक डिसाइपल कहता है यार बाकी सब तो ठीक है, एक लोग हैं जिनसे हमें मसला हो सकता है, वो मुसलमान। इबलीस कहता है खादिम हुसैन मैं हूं ना, मैं बताता हूँ इनको कैसे टैकल करना है। वो नज़म के अंदर, वो इतनी खूबसूरत नज़म है, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि इबलीस बता रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को वो करना है। तो उसका जो आखिरी शेर है ना वो ये है कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबहगाही में इसे, कि जो विर्द करते रहते हैं और वो जो नुस्खे आते हैं कि ये पढ़ के सो जाओ सीधे उसमें, और सुबह उठोगे तो सब कुछ पा चुके होगे, एलॉन मस्क बन चुके होगे हैं, इसको इतनी दफ़ा पढ़ लोगे तो आप 100% दुनिया को फाड़ के आगे निकल जाओ। बिल्कुल। तो इकबाल कहते हैं, इबलीस कह रहा है मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबहगाही में इसे, इनको इतने में मस्त कर दो, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही निज़ाम, जो तकलीदी सोच है, बाप फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, देयर इज नो नॉवेल्टी इन द थॉट। तो पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे, कि इसी में लगे रहें, ये इसी में खत्म हो जाएंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड टू अस। सो ये हमारे सेल्फ हेल्प है, मैनेजमेंट की किताबें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे मुल्क में लोगों को स्टार्टअप करना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए। लोग हाँ 17 सेंचुरीज के बाद से गेम शुरू हुई है यूरोप की। गेम ये थी कि जब मुस्लिम की गोल्डन एज थी फ्रॉम 8th till the 13th century, that was the golden era of Muslims. You name Al-Biruni, you name Al-Kindi, you name Al-Razi, you name Ibn Sina, you name Umar Khayyam. These were stalwarts in the field of science and literature and astronomy. बिल्कुल। Can you believe Al-Biruni in Pint Dadan Khan? If you go to motorway, Pint Dadan Khan रास्ते में आता है, बिल्कुल आता You है। must have seen. वहां की एक पहाड़ी पे बैठ के उसने अर्थ का सर्कमफ्रेंस माप लिया 98%, 98% एक्यूरेसी के साथ। Imagine. इब्न सीना की जो बुक है कैनन ऑफ मेडिसिन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन ऑन मेडिसिन। उमर खयाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वजह से बहुत फेमस था, राइट? सो अपना इब्न अल-हैतम, द मैन विद द पिन, वर्कड ऑन द पिन होल कैमरा। यूरोप का टाइम ये था कि वहां पे जो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च था, उसका इतना होल्ड था कि वो औरतों को मरवा देता था कि विचक्राफ्ट करते हैं। कोपर्निकस को अगेन कोपर्निकस को परसिक्यूट किया। गैलीलियो को हाउस अरेस्ट कर दिया टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। बिल्कुल मरवा देता था चर्च। वो कहता था नहीं, उसने कहा हिलियोसेंट्रिक है, उसने कहा नहीं हम तो क्या नाम है, अर्थ जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, चर्च कह रहा है। कोपर्निकस बोल बोल के थक गया, नहीं भाई, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम।
They were not willing to. गैलीलियो को कहा, उसने कहा ये टेलीस्कोप से मैं मून दिखाता हूँ, कहते हैं इसने टेलीस्कोप के ऊपर मून बनाए हुए हैं, खुद बनाए हुए हैं. That was the condition of the West, which is currently leading the pack when it comes to technology and innovation. ये जब Protestantism आया, Protestants आए, and then again the 17th century. इसकी एक बुक भी है, I'm forgetting the name, मैंने उसका रिव्यू भी किया था, कि the age of enlightenment in the 17th century and the age of enlightenment, something on those lines. गुटेनबर्ग साहब ने प्रिंटिंग प्रेस को इजाद कर दिया. उस जमाने में जो टर्किश ऑटोमन एम्पायर थी, उन्होंने कहा यार ये तो गैर शरई है भाई, हम तो कुछ भी नहीं छापेंगे, हम तो for 300 years, for 350 years they didn't print anything. And that printing press was the revolution that Europe needed. They started producing material, अपने इंटेलेक्ट को फैलाना शुरू किया. And look where they are. And then age of enlightenment came. उन्होंने कहा कि यार चर्च को हम लोग रखेंगे, मजहब को हम लोग रखेंगे स्टेट से अलग, और हम लोग अपनी जर्नी शुरू करेंगे रैशनैलिटी के ऊपर. हम लोग लॉजिक की बात करेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे, हम लोग साइंस की बात करेंगे, हम लोग फलसफे की बात करेंगे, और जो आपके डॉगमेटिज्म है ना, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं. आप डेकार्ट उठा लें, आप बाकी जो लीडिंग फिलोसफर्स हैं उनको उठा लें, यार मैं कहता हूँ ये लोग इतने ब्लेस्ड लोग हैं. अगर अलेक्जेंडर फ्लीमिंग ना होता तला, कोई बंदा बता दें जिसने कभी एंटीबायोटिक यूज नहीं. थैंक्स टू अलेक्जेंडर फ्लीमिंग, थैंक यू सर. करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा गया. 2UU ना होती तो मलेरिया से हम मर रहे होते लोग. थैंक यू 2UU फॉर डूइंग दिस फॉर अस. जब सोच की, देखो एक शेर है कि फकीर शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है. सो सारी गेम है सोच की. और हमने भी अपनी कौम को, माई मिशन इज टू गिव दैट सोच, दैट थॉट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. तो अगर आपकी सोच सही है ना डायरेक्शन में, एक मिर्जा गालिब का शेर है, वफादारी बशर्ते अस्तवारी असल ईमा है, कि अगर आपकी वफादारी सही डायरेक्शन में है ना, आपकी अगर आप वफादार हो और वो सही डायरेक्शन के, तो असल ईमा ये है, वफादारी बशर्त अस्तवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को. मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को. यह है सोच. People do not understand that. Why? We are too much into superficial and driven by dogmas. थोड़ा सा मेरा एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, but I feel that every individual of our country, he has to be insanely driven towards progression. He has to be insanely driven towards making his life and his family life and his community life better. Intellectual life better. Intellectual life better. हमें कहते हैं यार, हमें पता है क्या है? It's a berating concept, terminology. यार तू intellectual ना बन. This is the state of affairs. But लोग पढ़ना चाहते हैं, आप उनको झंझोड़ो तो सही. मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि इन यूनिवर्सिटी मैंने ऑब्जर्व की है और कुछ इंटरव्यूज़ के ज़रिए ऑनलाइन, कि यंगस्टर्स आर वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स रीडिंग, और लेकिन इशू ये है कि वो रीडिंग्स बुक्स अवेलेबल ही नहीं है. सो फॉर इंस्टेंस एक मिसाल ले लें कि देयर इज़ अ कम्युनिटी लाइब्रेरी इन दिस सेक्टर, तो उसकी टाइमिंग आप देखें क्या है. उसकी टाइमिंग 9 to 5. You know, I say, we as a nation, Pakistan needs a major intellectual audit. Major intellectual audit की ज़रूरत है हमारे मुल्क को. We need to retool ourselves. We need to rewire ourselves. We need to think out of the box. We need to change. ज़रूरी नहीं है कि जो बातें हमें बताई गई हैं traditionally वो सच है. Like I said, what you have been told or what I was told, I realized 90-95% of that was a lie. जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया, and I read it in its true essence, it's such a fascinating book. It's such a beautiful book which persuades you, which prompts you, which forces you to think. सूरह राद में, सूरह रोम में बार बार अल्लाह कहता है कि ये सूरज चांद सितारों में जो मूवमेंट्स हैं इनकी, मेरे जो नेचर है उसके अंदर
सोचो उसको। इसके बाद हम एक ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे जा सकते हैं कि लेट्स से अभी तक हमने बात की है कि व्हाई शुड अ पर्सन रीड बुक्स, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ कंट्री, फॉर अ नेशन, फॉर ह्यूमैनिटी। लेट्स से इस पॉइंट पे आके किसी ने डिसाइड कर लिया कि जी अब तो मैंने किताबें पढ़नी है, तो आई वुड आस्क यू टू कमेंट ऑन द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एन एब्सोल्यूट बिगिनर जो अभी दे हैव जस्ट स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। Number one, identify which genre of literature do you like. बहुत important, क्योंकि हम डिस्करेज हो जाते हैं। अब तला तुम्हें पसंद है फॉर एग्जाम्पल साइंस फिक्शन और तुम हिस्ट्री की किताब ले आए हैं, ऐसे तुम्हें फलसफा पसंद है और तुम एक रोमांटिक किताब ले आए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फिनिशिंग दैट बुक विल बी लो। आइडेंटिफाई योर जॉनर, आपको क्या पसंद है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्लासिक, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, सेल्फ हेल्प, रिलीजियस लिटरेचर, falsafa, psychology, whatever you like. Identify that, number one. Number two, once you identify, buy short novellas around that. जैसे जॉर्ज ऑरवेल है ना, अगर आपको फिक्शन पसंद है, start with Animal Farm. Probability of finishing an Animal Farm is much higher than probability of finishing War and Peace. या सिमोन डे बोवार की The Second Sex. These are thick books. So number two is start with short novellas, short stories जो आप खत्म कर सकें और आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिले कि यार मुझे बुक खत्म कर ली, आई स्टार्टेड रीडिंग। या आई स्टार्टेड रीडिंग। नंबर थ्री, डोंट यूज रीडिंग एज अ सेडेटिव, एज अ ट्रैंकुलाइजर। रात को सोने से पहले अक्सर लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं, हमें नींद आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप फोकस्ड जब तक होके नहीं पढ़ोगे, सो रीड व्हेन यू आर फोकस्ड। Or I think morning is a good Morning is a good time as soon as you wake up. If somebody is an early riser, is good enough. ये चौथा हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड हो गया। Fourth is install 2 apps in your mobile. One is Goodreads and other is Audible. ठीक है, and the third is the one Blinkist. Do that. 3 applications आप डाउनलोड करें और ये सामने पड़ी होनी चाहिए। हाँ, सामने डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के डेस्कटॉप के और नोटिफिकेशंस ऑन। पांचवा स्टेप है जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इन्वेस्ट इन बुक्स। इफ यू डू नॉट नो द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बुक्स, यू विल नेवर। मेरे डेस्क के ऊपर कितनी किताबें पड़ी होती हैं और लोग कहते हैं मैं बोरो कर लूँ। मैं कहता हूँ बोरो तो कर ले मेरा भाई, लेकिन तू पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है क्यों। लोग ये व्हाट्स द कॉज ऑफ अ जिंगर बर्गर 700-600 एक मील। अगर आप KFC में खाएं, KFC तो बहुत ही वो है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं एटलीस्ट 1500-2000 रुपए का पर हेड आ रहा है आराम से आजकल। बिल्कुल, और आपको 1500 रुपए में किताब मिल जाती है और वो किताब आप 3 महीने पढ़ सकते हैं, 4 महीने पढ़ सकते हैं, लेकिन आप खर्च नहीं करेंगे। Why? Because we do not know the art of investing in books. I say, if you start investing in books, you do not need to invest in any other thing in the world. You do not, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ। It's a whole new world. It builds your personality. It builds your existence. It roots you. It exposes you to the world. It makes your mind grow. It makes your cognitive ability grow. It makes you think. You become emotionally sound. I can go on and on. इसके असरात क्वांटिफाई नहीं किए जा सकते। और ये इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको हर तरीके से रिटर्न देगी, मॉनेटरीली देगी और आप इतनी दौलत कमाओगे कि जिसकी इंतहा नहीं है। हाँ, अगर if you tread the right and you do all the other things right. So learn the art of investing in books. मेरे ऊपर इसकी एक वीडियो, मेरे पास इसकी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया था कि स्टूडेंट को कितना बजट करना चाहिए। सही है। हाउसवाइफ को कितना बजट करना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव जो है, जो बिगिनर है, जो अपने करियर के स्टार्ट में, उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। मैथमेटिक्स के साथ बताया कि कितना, हाउ मच शुड वन स्पेंड ऑन रीडिंग, ऑन बाइंग बुक्स। सो पीपल कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। आई वुड से कि इफ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपए ना, तो 1500 रुपए या 2000 रुपए 2%। वो तो लाजमी, वो तो हक बनता है बुक रीडिंग्स, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के अंदर।
लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं हम अपने बच्चों के लिए क्या करें। ऐसे कि बच्चों के लिए कुछ करना है ना तो उनको किताब बीनी की हैबिट लगाते हैं। फिट सी एक लाइब्रेरी बना दो उनके लिए। फिट सी लाइब्रेरी, और उनके अंदर ये इनग्रेन कर दो कि यार किताबों के साथ जो है ना अपनी दोस्ती बना ले, और उसके अंदर सारी बुक्स पढ़ी हूँ अच्छी अच्छी, सारी बुक्स पढ़ी, और सारी बुक्स ये फलसफे की। कोई बुक ऐसी ना हो जो आपके नहीं आ रही। ये मैं आज मुझे एक कमेंट आया मेरे फेसबुक के ऊपर कि सर आई लव योर बुक रीडिस्तान, यू हैव कवर्ड 50 बुक्स एंड आई वांटेड टू डोनेट इट टू अ लॉट ऑफ स्कूल्स, लेकिन मैं नहीं किया। क्यों? उसके अंदर 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने फाड़ के फिर अपनी फैमिली को दिए। उसमें एक बुक है लोलिटा, यू हैव रेड लोलिटा? No. व्लादिमीर नाबोकोव की, वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम। और दूसरी है टैबू। तो मैं उन हजरत की सोच को समझ सकता हूँ, एंड आई डू नॉट कंटेस्ट हिज थॉट, लेकिन ये लोगों की सोच है। टैबू इज अबाउट द रेड लाइट एरिया ऑफ लाहौर, सही है, मैंने अपनी बुक में कवर किया। ठीक है। और लोलिटा is a story about a 38-year-old professor Humbert who falls in love with a 12-year-old, who's sexually attracted to a 12-year-old girl. उसका नाम है लोलिटा। मूवी भी है इसके ऊपर। अच्छा। It's one of the finest novels ever written. It's one of my favorites. तो मैंने उसको रीडिस्तान में कवर भी किया। So what I'm trying to say is, if you develop or if you understand how to invest in books, you do not need to worry about any other investment. This is step number 5. And step number 6 is subscribe to Book Buddy. This is very important. This is very, very important. ताकि कोई YouTube खोले तो पहले ही वो आ जाए सामने। आ जाए सामने। इसके बाद ये भी है कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में होते थे तो वी यूज्ड टू आस्क आवर टीचर्स कि जी हमने तो बुक्स पढ़ ली, लेकिन व्हेन वी रीड समथिंग तो वो कुछ टाइम बाद वो चीज़ भूल जाती है। हाँ, ये भी बहुत सवाल आता है मेरे पास ना कि हम जो पढ़ते हैं हमें भूल जाता है। देखो, एक तो तरीका ये है कि पीपल नीड टू मेक नोट्स फॉर व्हाट दे रीड, नॉट ड्यूरिंग रीडिंग, वंस दे रीड। एक दफ़ा आपने एक सेशन लगाया 15-20 मिनट का, उसके बाद जो भी आपने पढ़ा उसके छोटे मोटे नोट्स बनाने। दूसरा ये एक आपको फिजिकल नोट्स बनाने, एक मेंटल नोट्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक पढ़ रहे हो परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, आप एक किताब पढ़ रहे हो या 1984 पढ़ रहे हो। अब आप वो किस माहौल के अंदर पढ़ रहे हो? आपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, रूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, उस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उस जो किताब के अंदर हो रहा है उसका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू किताब के अंदर ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी से या ज़िंदगी के किसी वाक़े से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। व्हेन यू मेक दीज मेंटल कनेक्शंस विद द बुक एंड यू डॉवटेल इट विद योर पर्सनल लाइफ, तो उसकी लॉन्जेविटी इन योर माइंड बढ़ जाती है, रिट्रीवल उसका बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर। 1984 जो जॉर्ज ऑरवेल की किताब है, वो उसमें बिग ब्रदर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है जी, कि नथिंग इज हिडन फ्रॉम द बिग ब्रदर, ही इज एवरीवेयर। अब इससे हम क्या चीज रिलेट कर सकते हैं? मॉडर्न सर्वेलेंस, आपके मोबाइल डिवाइसेस, हर वक्त कोई ना कोई आपको सुन रहा है और देख रहा है। अब आपने कनेक्शन बना लिया 1984 के साथ, राइट? अब ये आपको सोच कभी भी नहीं भूलेगी, क्योंकि मैंने अभी बैठे बैठे आपका एक कनेक्शन बना दिया आपकी जिंदगी से, मोबाइल से, और लाइक यू से कंट्रोल द थॉट। सो कंट्रोलिंग द थॉट वाला जो है शायद पाकिस्तान में भी है, शायद नॉर्थ कोरिया में भी है। अब आपने उस किताब से रिलेट कर दिया, अब आपको 1984 कभी नहीं भूलेगी। ठीक है। हमने आज 1984 एनिमल फार्म को रिलेट किया किससे? पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से। आप स्क्वीलर को कह दो कि यार ये है, आप मिस्टर जोन्स को कह दो ये कैरेक्टर है, हाँ, आप उसको वो हॉर्स जो था उसको कोई और नाम दे दो, आप ये दे दोगे, आपको ये कभी भी नहीं भूलेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेरे सामने नॉर्मली आता है वो ये है कि मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि यार व्हाई डोंट यू गेट आउट ऑफ योर बुक्स, और हर वक्त किताबें पढ़ते हो, गेट अ लाइफ और समथिंग। ये वो लोग कहते हैं जो किताबें खुद नहीं पढ़ते। यार तूने सारी उम्र किताब नहीं पढ़नी, यार प्रैक्टिकल आ जा। ये इन लोगों को बताओ कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स कौन है? अभी कौन है? बेजोस, एलॉन मस्क है। अभी बेजोस है यार, एलॉन मस्क सेकंड पे होगा, बेजोस है एक ही कैटेगरी में। बिल गेट्स को ले लें, बिल गेट्स तो काफी पीछे चला गया। एलॉन मस्क इज अ वोरेशियस रीडर टू द एक्सटेंड कि बचपन में जब वो किताब पढ़ता था, उसकी माँ कहती थी, उसकी माँ को लगता था कि ये जो है ना डेफ हो गया, बहरा हो गया, क्योंकि वो आवाजें देती रहती थी, वो सुनता नहीं था। He was so engrossed into books. A journalist asked him, how did you have no background of space sciences,
How did you establish such a successful company like SpaceX? He said, I read. और उन्होंने So, साइंस Elon फिक्शन Musk- पढ़ के he reads, a voracious reader. So if Elon Musk, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, reads. Bill Gates, दुनिया का अमीर तरीन आदमी रहा है, he reads. Obama, he reads. George Bush, he reads. You pick up any individual, any successful individual, Accomplished. 90% of them are voracious readers. Why? मैंने इस पॉडकास्ट के शुरू में बोला था, it is a means to an end. It is not an end in itself. रीडिंग आपको वो सोच देती है, वो विजडम देती है, वो इंटेलेक्ट देती है, वो दानाई देती है, जिसके जरिए आप अपनी शख्सियत को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. इसके बाद ये है कि देयर टू क्वेश्चंस. दूसरा आपने इन अ वे आंसर कर दिया है, लेकिन वी कैन डिस्कस इट अगेन. पहला ये है कि व्हाट आर यू रीडिंग करेंटली? आई रीड 2-3 बुक्स नाउअडेज साइमल्टेनियसली. एक तो मैंने बताया द एंड ऑफ फेथ. ठीक है. एक और मैं बुक पढ़ रहा हूँ, फैक्टफुलनेस, ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई है. हांस रॉसलिंग की, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम आई हैव रेड. ठीक है. एंड एक मैं बुक पढ़ रहा हूँ जिना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड हिज रोल इन हिस्ट्री बाय डॉक्टर इश्तियाक अहमद. फैंटास्टिक बुक. सो ये 3 किताबें मैं साइमल्टेनियसली पढ़ रहा हूँ. और द लास्ट क्वेश्चन इज कि अ फ्यू बुक्स दैट, तो बहुत सारी होंगी, लेकिन a few books, 1 to 3 books that blew your hair back. यार ये क्या मैंने पढ़ लिया? डजन बुक्स तो होनी चाहिए है. ओके. फैक्टफुलनेस. हाँ, मेरे पास ना एक डायरी है, वो मैं अक्सर अपने लैपटॉप में रखता हूँ. उस डायरी के ऊपर ना लोग अपनी औलाद को जायदाद विरसे में देते हैं, ये वो देते हैं. मेरा विरसा ये होगा कि मैं उस डायरी में लिखता हूँ एक नोट फॉर माई चिल्ड्रन कि व्हेन दे ग्रो अप कौन सी किताबें उन्होंने पढ़नी है. उसमें मैं लिखता रहता हूँ. नाइस. सो आई हैव टोल्ड माई डॉटर एज वेल कि भाई ये जो है ना अपना, ये मैं लिख रहा हूँ. ओके, इफ आई रिमेन और डोंट, यू ओपन दिस डायरी एंड यू सी कि मैंने कौन सी रिकमेंड की है. सो फैक्टफुलनेस इज वन ऑफ दोज बुक्स. वन क्रेजी बुक, एक और बुक है स्टीवन पिंकर की, रैशनैलिटी. उसके ऊपर मैंने रिव्यू किया हुआ. अगेन वन हेल ऑफ अ बुक. टॉक्स अबाउट हाउ व्हाई वी डू नॉट थिंक रैशनली एंड हाउ कैन वी थिंक रैशनली. अमेजिंग बुक. स्टीवन पिंकर के तो जहां भी नाम है उसकी सारी किताबें पढ़ लो. फिर एक और बुक है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसल. ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑन दिस सब्जेक्ट. फिर एक बुक है थिंक अगेन, जो मैंने बताया, एडम ग्रांट की एक बुक है थिंक अगेन. एक बुक है 48 लॉज ऑफ पावर. यू रेड द बुक, रॉबर्ट ग्रीन की, वेरी फेमस बुक. उसी की एक और बहुत ही कमाल की बुक है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन. अगेन दैट्स वन हेल ऑफ अ आउटरेजियस बुक. एक बुक है जिसका ये तुमने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, सिमोन डे बोवार की द सेकंड सेक्स. ऑल्दो आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, लेकिन एक चीज जो लोग मुझसे सीख सकते हैं वो ये कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ. मैं फेमिनिस्ट सोच से अलाइंड नहीं हूँ. मेरा कुछ एतराज़ है उनकी सोच के ऊपर. आई एम ऑल फॉर विमेन एम्पावरमेंट. आई एम ऑल फॉर गिविंग इक्वल राइट्स टू विमेन. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. एंड देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ फेमिनिज्म व्हिच आई डू नॉट एग्री विद. Yet one of the best pieces of literature anyone has ever written is Second Sex by Simone de Beauvoir. मैं चाहता हूँ ये सोच लोग मुझसे सीखें कि मैं उसके फलसफे से शायद अलाइंड नहीं हूं, लेकिन मैं दीवाना उसकी राइटिंग का. यार उसकी जो सोच है कि वन इज नॉट बोर्न अ वुमन बट बिकम्स वन. यार क्या सोच है. इसके अलावा एक उर्दू की बुक है, ड्रामा है अशफाक साहब का, मन चले का सौदा. माइंड बेंडिंग एंड माइंड बॉगलिंग बुक. पीटीवी के ऊपर ड्रामा भी आ गया. आई थिंक इट वाज बैंड बिकॉज ऑफ इट्स बिजार कॉन्सेप्ट. ये दुनिया की शायद वाहिद किताब है जो तसव्वुफ को, सूफिज्म को और क्वांटम मैकेनिक्स को ब्लेंड करती है. एक तो बैन कर देते हैं सारा कुछ. ये हमारे, अब क्या मैं कह सकता हूँ उसके बारे में. बट मन चले का सौदा इज अ पीस ऑफ लिटरेचर. One hell of a book that you can read. What else? हाँ, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनके लिए एक बुक है
0 to 1, Peter Thiel की. पढ़ी है मैंने. Amazing book. अच्छी book है. I kick-started my entrepreneurial journey by reading that book. It's transformational. इसी तरह जो लोग मैनेजमेंट साइंसेज में, उनकी गुड टू ग्रेट है जिम कॉलिंस की एक बुक, बहुत कमाल की बुक है. मैल्कम ग्लैडवेल की बहुत सारी बुक्स हैं. टिपिंग पॉइंट है और ब्लिंक है और आउटलायर्स हैं. ये 3 किताबें हैं मैल्कम ग्लैडवेल की. These are marvelous books. What else? In philosophy? Philosophy में खैर मैं अगेन एनिमल फार्म को ही दूंगा वो. देखो फिलॉसफी में मुझे बहुत मुश्किल है. क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इज अ बहुत गाढ़ी और बहुत मुश्किल किताब है. उसके अडेप्टेड वर्जन्स आते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं. बियॉन्ड गुड एंड इविल बाय नीचे, फ्रीडरिक नीचे. दैट्स अ गुड बुक. थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा बाय नीचे, जिसमें उसने ऊबरमेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है. दैट यू कैन रीड. फिलॉसफी के अंदर मैन सर्च फॉर मीनिंग, ब्रिलियंट बुक, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की. He who has a reason, he who has a why to live for can deal with anyhow. ये भी नीचा की स्टेटमेंट है, लेकिन ये डॉक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक में यूज किया कि he who has a why to live for can deal with anyhow. क्या बात है. और नंबर 1 पे जो मैंने बार बार जिसका नाम ले रहा हूँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट, रिलीजियस थॉट इन इस्लाम बाय इकबाल. चलें, it was a very fruitful conversation. Thank you so much, Tala, for having me, and I appreciate your endeavor. This is something which the nation needs, and I hope you take it to the next level and you go the extra mile. For you, I will narrate 2 lines, 3 lines from Robert Frost. Sure. Woods are lovely, dark and deep, but I have my promises to keep, and miles to go before I sleep. Very nice. And miles to go before I sleep. Brilliant. So this is I dedicate to you. Thank you very much. It's a long journey, but I hope you do it. And thank you very much. For the people of Pakistan, my message is Tala ke zindagi you get only once. This is an opportunity of a lifetime. You need to realize during this lifetime what do you want to do with your life. And the time is limited. The sooner you realize, the better it is for you. So remember, action cures fear. If you keep on sitting in your drawing rooms and expect your life to change, it won't. It absolutely won't. So if you want to do something meaningful in life, think about it, be pragmatic about it, be practical about it. Make sure whatever comes to your mind, you put it into action. You might fail. You might fail once, twice, thrice. But if you keep on trying, you will eventually be successful, because this is one of the most important principles of life that I have learned. And that is कि अगर आपके पास एक एवरेज इंटेलेक्ट है ना, आपके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, कोई मसला नहीं. अगर आपके अंदर परसिवेरेंस है, कमिटमेंट है, एक डेडिकेशन है लॉन्ग टर्म अपने गोल्स को लेके, you will eventually become successful. And that is what I want my people to be. Thank you very much. It's a wonderful message. I hope people listen to it and abide by it. And thank you very much for your time.